I'll revise the things quickly again. Just few minutes में रिकॉर्डिंग करते हैं. देखो रिवाइज कर लेते हैं. स्टीफेंस लॉ का रिवीजन ये we did it yesterday. This one I will revise. Okay, that question first. ये क्वेश्चन में मैंने बताया था what is called K1A1 plus K2A2. तो एरिया इसका जो अंदर वाला सिलेंडर है वो सॉलिड है. That will have the area pi r square. बाहर वाला सिलेंडर है उसका K1 है अंदर वाले का. बाहर वाला सिलेंडर जो है वो हॉलो है. आउटर एरिया आउटर सरफेस आउटर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी pi into 2r square. इनर वाला माइनस करना है इतना minus pi r square. So it comes to be K1 plus 3K2 by 4. That is answer C. All right. Or then we saw what is called Wien's displacement law. In this, I explained you if we take the body and heat it to the temperature T1, it will emit various wavelengths, infinite wavelengths. In fact, infinite wavelength it emits. तो उसका graph ऐसे, if we take the radiant energy on the y-axis and wavelength on the x-axis, the graph goes like this up to infinite. ठीक है? And wavelength corresponding to maximum intensity is only one, that is lambda m. If we increase the temperature T2, graph is going up and peak value is shifting towards left. Therefore, it is called displacement. Means for the scientist who studied about this, if we increase further temperature, graph will further shift, go up, and peak value will shift to the left. One more point I want to tell you. इसकी graph का नीचे का area will give you the total heat of the body. Total heat energy content in the body. Area under the graph gives the total heat in the body. ठीक है? So let's see NCERT book का first they have taken the lamp filament का temperature 2000 होता है, उसका graph ये आया, उसका lambda m will be here. Then electric arc building which is further higher temperature, उसका shift हो गया इधर. सन का फर्दर हाई टेम्परेचर है, उसका फर्दर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया. ठीक है? तो व्हाट डज दिस लॉ से? प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर रिमेन्स प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर. वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ है जी? वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी वो लेनी है. टेम्परेचर ऑफ द बॉडी लेना है. दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. इन अदर वर्ड्स wavelength is inversely proportional to T. If temperature goes up, wavelength comes down. कौन सी wavelength? Corresponding to maximum intensity. This is Wien's displacement law. B की वैल्यू कैलकुलेट करके दी है उसने 2.9 into 10⁻³ सेंटीमीटर में. अगर लिखेंगे कभी कभी सेंटीमीटर में दिया होता है 0.29 सेंटीमीटर केल्विन, but we have to use in the SI unit. All right. This point already I explained you. किचन का जो एग्जांपल दिया मैंने, गैस फ्लेम जो है, if it is full properly on, it is bluish, and if some nozzle में some dust particle goes, then it is oxygen gases. That supply of the gas reduces, flames turn reddish. है ना? Less temperature means reddish, and more temperature means bluish and whitish also. न्यूमेरिकल्स के लिए λ1 T1 is equal to λ2 T2 यूज करना है. λ1 will be क्या? λm1 कर सकते हैं और λm2. Doesn't matter, both are same. यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए we'll use the symbols. थोड़ा सा easy. Now ये क्वेश्चन था, इसमें three that wavelength corresponding to intensities are given. तो जो सबसे लेफ्ट में होता है that is maximum temperature. यहाँ मिनिमम वेवलेंथ है इसकी उसके मोर है, इसकी फर्दर मोर है. वेवलेंथ इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो λ3. तो सबसे कम जो है वेवलेंथ उसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर T1, नेक्स्ट नंबर पे T3 एंड नेक्स्ट लास्ट पर T2. तो बी इज द आंसर.
जितना लेफ्ट में होगा वेवलेंथ उतना टेम्परेचर मोर होगा। ये सबसे लेफ्ट वाला है, ये देन ये राइट मोस्ट है, लीस्ट टेम्परेचर। लेफ्ट मीन्स व्हाट? मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम टेम्परेचर। And Wien's law is useful in determining the surface temperature of the moon and sun and other celestial body. Sun का जो है wavelength corresponding to the maximum intensity is this much. Put the value in the relation of Wien's displacement law. Temperature comes to be this इतना 60 60 Kelvin. Quite a high temperature, but core पे further high temperature. Surface related radiation है ये, तो surface का temperature देगा हमें. All right. So this is the question. For two stars, if ratio of wavelength corresponding to maximum intensity is 1:2, find the ratio of their heat radiation. इसमें पहले वीन्स लॉ यूज करो। गॉट द क्लू, किसी ने को मिला? वीन्स लॉ से हमें क्या मिल जाएगा? T1:T2 मिल जाएगा, रिवर्स है ना, रिवर्स रेशियो आएगा 2:1 है। आफ्टर दैट हमें इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन चाहिए, रेशियो ऑफ देयर रेडिएशन, रेशियो ऑफ हीट रेडिएशन चाहिए, H1/H2. Now use the स्टीफेंस लॉ। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है स्टार, इनका E1 लिया जाता है। दे आर सपोज टू बी द आइडियल रेडिएटर्स, E1 है। तो E will get cancelled, sigma will get cancelled, है ना। हीट रेडिएशन, find the ratio of rate of heat radiation per unit area। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, एरिया नहीं दिया ना। Find the ratio of their heat radiation, rate of heat radiation, rate of heat radiation per unit area। ठीक है, तो एरिया डिनोमिनेटर में आ जाएगा पर यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का हीट रेडिएशन। तो ए विल आल्सो adjusted in the what is called rate of heat radiation। तो लाइट साइड में कुछ बचे नहीं, टेम्परेचर का रेशियो बचा है बस, एवरीथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड। तो डू इट एंड सेंड इट, फर्स्ट यूजिंग द Wien's law, second using the Stephen's law। ठीक है, तो दिस विल डिस्कस इन द आफ्टरनून क्लास, अगेन इट इज एट 2:20 to 3:45। we'll continue with the new chapter, this is going to be over। So this is the one interesting question, logical question है काफी। This also I am going to discuss in the afternoon, but this is only for NEET and JEE students। थोड़ा सा हाई लेवल हाई नहीं है, but just calculations and logical thinking, very good question this is। Wien's law से निकालना है। let us go through what is this। Black body is at temperature this much, 2880 Kelvin। Energy of radiation emitted by this body with the wavelength between 499 and 500, very small patch will be there, this corresponding to, okay, roughly corresponding to 500 is λ1, roughly corresponding to 1000 is, sorry, λ1 U1, roughly corresponding to 1000 is U2, and roughly corresponding to 1500 is U3। the Wien's constant is also given, नैनोमीटर में दिया है ना, नैनोमीटर will get cancelled here, है ना। तो इतना दिया है। then which is the right options? ये तो जीरो तो होती नहीं, any temperature there will be no, there will be radiation, है ना। I told you infinite wavelength होती, तो जीरो तो possible नहीं है, but out of this or this, two options are right। So think about this question, very good question। ठीक है, we'll discuss in the afternoon।
take the snapshot of this, those who are going for JEE and NEET. Anybody got the clue कैसे करना है? Okay, chalo, we'll discuss in the afternoon class. Now, last one is Newton's law of cooling. This is also important. All three laws are very important here. देखो, Newton's law of cooling में you must have experienced, suppose हमने if we keep the hot coffee or tea on the table, initially it cools faster, then rate of cooling is slowed down. पहले जल्दी से temperature drop होता है, बाद में फिर same drop of temperature takes more time. है ना? So that Newton's observed this thing and he made the law, made that he given that what is the rate of cooling किस पे depend करता है और rate of heat radiation किस पे depend करता है. ठीक है, तो rate of heat loss due to the radiation minus loss है नहीं, decrease हो रही नहीं, ये minus लिखा जाता है dq by dt, heat loss due to radiation of body is directly proportional to the difference of temperature of body over the surrounding. मतलब यहाँ पे suppose हमने एक बॉडी ले ली, उसका टेम्परेचर T है, रेडिएट करेगी एनर्जी वो, सराउंडिंग टेम्परेचर T है सर, तो रेट ऑफ हीट रेडिएशन इज T minus T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग. जितने ज्यादा एक्सेस टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हीट रेडिएशन होगी. दैट्स व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक है, तो difference of temperature of body over the surrounding T minus Ts. T is the temperature of the body, provided this temperature is small. Temperature small है तो directly proportional relation आ जाएगा, नहीं तो नहीं, then also rate of cooling will be faster, but उसका relation फिर कुछ और होगा, and this is for the small temperature difference. Temperature, provided temperature of the body is small, and this temperature difference is small. Okay, एक मिनट, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ नीचे लिखा है मैंने, यहाँ पे, यहाँ पर भी लिख दो प्रोवाइडेड, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में वो स्मॉल ऊपर की जो क्वांटिटी है ऐसे लिखते हैं ना, बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव किया, ये एक्स अपॉन समथिंग होता है ना, ये एक्स स्मॉल वैल्यू होती तभी पावर आगे आ जाती है, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाया उन्होंने, इसलिए वो एक कंडीशन पुट कर दी, प्रोवाइडेड टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल. So this is what is the statement, minus dq by dt is constant of proportionality का किया जाता है T minus Ts. This is directly proportional, ऐसे लिख सकते हैं, rate of cooling is directly proportional to T minus Ts. T is the temperature of body, temperature of body keep on decreasing also, एक fix नहीं रहेगी, it will keep on falling. Temperature of surrounding, Ts is the temperature of surrounding. ठीक है, तो K is the positive constant depending upon the area and nature of the surfaces of the body. We'll see K किस पे depend कर रहा है. We'll derive this relation and we'll see K किस पर depend कर रहा है. Derivation is not in our course, but then also we'll derive. Now suppose this is the first statement. All right. इसी को फिर उसने चेंज भी किया, ये रेट ऑफ हीट रेडिएशन है, रेट ऑफ कूलिंग नहीं है. रेट ऑफ कूलिंग किससे डिनोट होगा, फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट टाइम. यहाँ पे रेट ऑफ रेडिएशन है, देखो दिस इज dq by dt, बट वी आर इंटरेस्टेड इन रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, तो उसको चेंज कर लेंगे. इफ m इज द मास ऑफ द बॉडी, s इज द स्पेसिफिक हीट, है ना, और डेल्टा t
temperature falls by the small amount delta T in time d small t, then rate of heating. तो देखो ये हमने पढ़ा है, Q is equal to ms delta T होता है, dq is equal to ms dt, टाइम से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, यहाँ पे dt से डिवाइड कर दो, यहाँ पे dt, ये दूसरा dq by dt हमें मिल गया, दूसरा रिलेशन मिल गया, दोनों को इक्वेट कर दो 1 और 2 को, ये यहाँ पुट कर दो, तो ये यहाँ ले आओ और ये यहाँ ले आओ, दोनों dq by dt, तो यहाँ से देखो ms मास इनटू स्पेसिफिक हीट, एंड ये भी कांस्टेंट है, तो ये dt by dt इज t minus ts, तो ये क्या है, ओके फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस रेट ऑफ कूलिंग, देखो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे हीट रेडिएट हो रही, तो रेट ऑफ हीट रेडिएशन लिखा था हमने, है ना, रेट ऑफ हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन लिखा था, यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर फॉल हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस है टाइम के रिस्पेक्ट में, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर, एक्सेस प्रेशर पढ़ा था कहीं पे हम लोगों ने, excess pressure was in the drop and bubble, and here excess temperature of the body over the surrounding, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा दूसरा, तो दिस इज व्हाट इज द टू स्टेटमेंट, दोनों लिख सकते हैं, बट यहां तक लिखना पड़ेगा इफ इट इज आस्क्ड। नाउ अगर हम ये इधर ले आए, ओके, हमें अभी आगे भी देखना है इसका, यहां तक देखो, हाउ डू वी गेट दिस रिलेशन, डू यू नो, करके दिखाऊंगे, कोर्स में नहीं है, बट हमें वी आर इंटरेस्टेड के के अंदर क्या है, ये जो के है ना, बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं उसमें के व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ के हमने यहाँ पे लिखा है आपको, चलो डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, विल सेव द टाइम, के किस पे डिपेंड कर रहा है, अपॉन द एरिया एंड नेचर ऑफ द सरफेस, एरिया पे डिपेंड करे, ये जो पहला वाला के इस पे स्मॉल के कर देते हैं, बिकॉज अगेन आल्सो one more k we have taken, ठीक है, तो देखो जस्ट लेट मी शो यू फुल व्यू, देखो यहां से देखते व्हाट वी डू इट, दिस रिलेशन, इसमें t माइनस ts को नीचे ले आए और ये k ms को नीचे इधर ले आए, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा एरो लगा देता हूँ कहाँ से ये स्टेप वी आर फॉलोइंग, दिस इज ऑल देयर इन टेक्स्ट बुक, बट ये k का जो रिलेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज नॉट गिवन, ओके, तो ये शिफ्ट कर लिया हमने, इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, तो ये टर्म आ गया, इसको उसको कैपिटल के ले लिया, तो कैपिटल के इज नथिंग बट स्मॉल के इनटू ms अपॉन ms, तो स्मॉल के हमने ऊपर लिखा था डिपेंडिंग अपॉन एरिया, तो जिस कैपिटल के जो है रेट ऑफ कूलिंग वाला जो कैपिटल के है, यहाँ पर देखो dt by dt इज इक्वल टू माइनस कैपिटल के टी माइनस रेट ऑफ कूलिंग वाला के में एक ms भी आ गया ना नीचे, ये वाला टर्म, तो ये दिस इज स्मॉल के अपॉन ms, तो स्मॉल के डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, तो ये कैपिटल के किस पे, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, बाकी कांस्टेंट है, सरफेस एरिया, इसका मास एंड इसका स्पेसिफिक हीट, ऐसे द स्पेसिफिक हीट, डू यू रिमेंबर ms डेल्टा टी में ऐसे द स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, तो दिस वी नीडेड फॉर वन ऑफ द क्वेश्चन ओनली, एंड आगे कंटिन्यू करते हैं, otherwise you don't have to remember, ये not required for you to remember, those who are going for board examination only, ठीक है, वापस आ जाओ इस पे, नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये dt अपॉन t माइनस ts, दिस इज सिमिलर टू dx अपॉन x, log x हो जाएगा, है ना, एंड ये यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और सिंस वी आर डीलिंग विद द इनडेफिनिट इंटीग्रल प्लस c भी आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। नाउ ये वाला फॉर्मूला, इसको अभी हम
व्हाट वी डू, लॉग के फार्मूले से चेंज करते हैं इसको. ओके, सी वी आर चेंजिंग फ्रॉम द लॉग फार्मूला. तो ये टर्म यहाँ रह जाएगा, ये टर्म सॉरी, हाँ ये टर्म एज इट इज रह जाएगा. और यहाँ का ये वाले जो है, ये जब लॉग हटाते तो ई की पावर में चले जाते. लॉग हटेगा तो ये फार्मूला फिर से लॉग लेके देखो इधर, ये आगे आ जाएगा. लॉग ई इज 1, तो ये 1. तो इसको अगर लॉग लेंगे ये स्टेप आ जाता है. तो दिस इज फ्रॉम द फार्मूला ऑफ लॉग. ये और ये सब पूरा पावर ई की पावर में चला गया. एंड ये सी है, इसको ब्रेक करके लिखे. पावर को हम इंटू करके लिख सकते हैं, e की पावर दिस इंटू e टू द पावर c. दिस इज अनदर कांस्टेंट, e टू द पावर c इज अनदर कांस्टेंट, जिसको c डैश ले लिया देखो यहाँ पर. ठीक है, इसको अलग से लिख दिया. एंड दिस इज वेरिएबल टेम्परेचर डिपेंडेंट. और ts को हमने इस तरफ भेज दिया, राइट हैंड साइड में प्लस हो गया. तो t जो है किस रेट से टेम्परेचर चेंज होगा, इट विल फॉल इन फैक्ट. देखो यहाँ पर फिर से देखो, ये यहाँ से देखो, ये रिलेशन, ये टेम्परेचर डिफरेंस है. डेल्टा टी इज e टू द पावर माइनस के टी प्लस सी. ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो, एनसीईआरटी बुक में उन्होंने ग्राफ दिया है, बट ग्राफ पहले ही दे दिया था उन्होंने. तो यू में आस्क सर ऐसा कैसे ग्राफ है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, माइनस है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. चेंज ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम. तो व्हाट ही नोटिस, तो सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, दिस इज द फॉल ऑफ टेम्परेचर. सपोज ये 10 डिग्री है, इट इज टेकिंग हाउ मच टाइम, say this much time, say 5 minutes. Next same amount of fall of 10 degree takes almost triple time, 15 minutes ले रहा है. अगर हम स्केल फॉलो करें, इतने के लिए फर्स्ट 10 डिग्री के लिए लेस टाइम, नेक्स्ट 10 डिग्री के लिए फर्दर लेस टाइम, फर्दर मोर टाइम, नेक्स्ट 10 डिग्री के लिए फर्दर मोर टाइम, ऐसा. तो दिस इज एक्सपोनेंशियली ड्रॉपिंग. First it is dropping fast and then slowing down till the atmospheric temperature is achieved. बाद में क्या होगा, सपोज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे वो अचीव कर लेगा उतना. इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग इज फास्टर. दैट इज व्हाट इज द, इट वाज नोटिस बाय न्यूटन. एंड उसने नोटिस तो सब वी डू इट, बट फार्मूला देना जो है दैट इज द बिग थिंग, है ना. फार्मूला बनाना और उसको इट इज एवरी टाइम इट इज गिविंग द करेक्ट रिजल्ट इज द मेन व्हाट इज कॉल्ड थिंग. तो ये रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, एक्सेस टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है टाइम पर, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, इनिशियली फास्ट देन स्लो इट डाउन एंड फिर टिल इट अटेन्स द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. सपोज इनिशियली टी है, बाद में धीरे धीरे रेडिएट हो जाएगी हीट, फिर इसका टी विल बी इक्वल टू टी एस. नो, इसीलिए देखो सपोज विंटर में हम लोग पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए. तो इफ इट इज द वाटर, हॉट वाटर इज देयर, आजकल तो गीजर आ गए, तो उसमें immediately mix it with the cool water, bring the temperature down so that energy loss will not be there. Suppose you keep it like this, after some time you mix with the water, cold water. So by that time, lot of energy will be radiated away. Effect will be not that much, loss of energy will be there. Better immediately mix it with the cool water, whatever is suitable for body. Mix करके रखो, energy losses will not be there because initially radiation is faster. All right, so this is what is there. न्यूटन्स लॉ ये सब है. और जस्ट विल फिनिश इट, इसको थोड़ा सा रह गया है. ये कर्व कभी कभी पूछते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट. इवन सिंगल टेम्परेचर का भी निकाल सकते, अगर सिंगल टेम्परेचर है देन आल्सो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर द टाइम. यहाँ से देखो ये वाला है ना, वो भी ऐसे ही है, इट इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, है ना. तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए भी सेम आएगा कर्व. यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में टेम्परेचर डिफरेंस का लिखा है, एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी सिमिलर आएगा बिकॉज इट इज एक्सपोनेंशियली ड्रॉपिंग. तो सेम रेट ऑफ with the similar looking curve will be there. Curve showing the cooling of the hot water with time. Okay, so you are supposed to draw this curve. It is important. Exponentially decreasing, initially at faster rate. The Newton's verification of Newton's law in lab can be done.
देखो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ वाटर है, और सराउंडिंग भी दे आर केप्ट एट टेम्परेचर TS। ये जो ट्यूब है, इसमें भी लोअर टेम्परेचर पे वाटर फिल किया, दैट एक्ट एज ए सराउंडिंग, एंड दिस इज द मेन बॉडी, उसका टेम्परेचर हायर है ना। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है, इधर से इधर हीट रेडिएट होगी। तो ये इक्वेशन थी, कौन सी वाली इक्वेशन है, ये लॉग वाली, दिस इक्वेशन नंबर दिया क्या हमने? ये वाली, प्लस सी है क्या? हाँ, ये वाली इक्वेशन, इसका नंबर दे दो। ये लॉग लेने के बाद यहाँ पर इसका नंबर क्या होगा? 3/4 कर देना। तो फ्रॉम फोर्थ, तो ये लिख लिया हमने। तो अगर हम इस पूरे टर्म को y मान लें, दैट इज व्हाट, ये पूरा टर्म ही उन्होंने y एक्सिस पे ले लिया, और ये t को x ले लिया, दिस इज x, दिस इज y, तो इसको x ले लिया। बाकी तो k विल बी द स्लोप, c विल बी इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। देखो लाइन को अगर एक्सटेंड करो तो y एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है। माइनस स्लोप मीन्स एंगल मोर देन 90, ये tan थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू m, माइनस है तो एंगल मोर देन 90। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए यहाँ नोट किया। पहले इनिशियल टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर तो फिक्स है, सपोज ये 100 है, 100 - 20, एक रीडिंग ले ली, यहाँ पे आ गई इसकी, है ना। इसमें वैल्यू पुट करके टाइम नोट करते चले गए, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिल गए। फिश का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम देखा कितना, उतने टाइम पर ये पॉइंट मिला, इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो जब डॉट्स हमने उन्होंने ज्वाइन किए तो इट कम्स लाइक दिस, इट इज मैचिंग विद दिस लाइन which is nothing but a Newton's law of cooling की इक्वेशन है, वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। तो डिफरेंट टाइम पर t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, आफ्टर 5 मिनट्स देखा, इन दोनों का टेम्परेचर नोट किया, इनिशियल टेम्परेचर भी नोट कर लो, आफ्टर 5 मिनट नोट किया, ये आ गया, नेक्स्ट आफ्टर 5 मिनट नोट किया, ऐसे। इसमें लीनियर है बिकॉज लॉन्ग लिया हुआ है ना। इस तरह से डॉट्स ज्वाइन किए, इट इज मैचिंग विद दिस रिलेशन, दैट इज हाउ verification of Newton's law of cooling is done, because it will match with one of the equations. फॉर्म अगर हमने चेंज भी कर दी, डजंट मैटर, इट रिमेन्स द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वी आर टेकिंग द लॉग एंड लॉग का फार्मूला लगाया। ऑलराइट, so that's how you can do the verification in the lab. तो फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आता है इसके ऊपर, ओनली 2 न्यूमेरिकल्स आर देयर इन एनसीईआरटी बुक, सेम आर बीइंग आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो विद द चेंज्ड वैल्यू। तो ये हमने सीखा था, रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू माइनस के into excess temperature, k is the constant of proportionality। तो ये जो डेल्टा टी है, इट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर, T2 माइनस टी, बॉडी सपोज से 50 से 40 आ गई इन टाइम t से 5 मिनट्स में, तो we'll keep it in minute because second answer will be also in minute। तो टेम्परेचर डिफरेंस देंगे कितना, फाइनल टेम्परेचर इज 40, इनिशियल इज 50, टाइम नीचे टाइम में डिवाइड कर देंगे, एंड k इज द ओके, डेल्टा टी इज temperature difference of the body, T1 and T2 are the temperature in time interval t, in time interval t, in time interval t, यहाँ पे लिखा है मैंने। और ये क्या है, k तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। व्हाट इज दिस t? t is the average temperature, t is the average temperature of body, क्योंकि neither you can take it this first one nor second one, उसका एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ेगा, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बनाओ, फर्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, a pan filled with the hot food cools from 94 to 86 in 2 minutes when the room temperature is 20, ये सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हुआ, how long will it take? 27 to 69 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, दूसरा खुद कर लेना। देखो यहाँ पे फार्मूला पुट कर दे, डेल्टा टी निकाल देते हैं पहले, डेल्टा टी इज T2 माइनस T1, T2 कितना, 86 माइनस 94 कितना आ रहा है, देखो 8 आ रहा है ना, -8 आएगा।
एनसीईआरटी बुक में उन्होंने प्लस लिया बिकॉज ये यहाँ भी माइनस आ गया और ये भी माइनस, माइनस कैंसिल कर दिया उन्होंने, ये माइनस आ रहा है ना, तो उन्होंने माइनस मेंशन ही नहीं किया सॉल्यूशन में, बट वील डू इट प्रॉपर्ली, अदरवाइज यू विल हैव द डाउट माइनस किधर चला गया। और T1 कितना दिया है, ये फर्स्ट टाइम कितना दिया T1, सेकंड को T2 ले लेंगे, कितने टाइम में, 2 मिनट्स में, लेट इट बी इन मिनट्स है ना। एंड एवरेज टेम्परेचर निकलना पड़ेगा, T विल बी T1 प्लस T2 बाई 2, कितना आ रहा है 86 प्लस 94 बाई 2 जस्ट कम्स 90 है ना। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई अपनी, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा T, ओके फिर फार्मूला लिख लेते हैं, नीचे T लिख रहे हैं, ओके, माइनस के T माइनस TS। ये इक्वेशन आ गई तुम्हारी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया -8, टाइम 2 है, और माइनस के, और एवरेज टेम्परेचर 90, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया 20, के की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 4 आ गया ना, के की वैल्यू 4/70, या फिर के नहीं निकालना है, 2 इक्वेशन बना के सीधा डिवाइड कर दो। सेकंड इक्वेशन में क्या है टेम्परेचर, यहाँ पे देखो, ये आएगा तुम्हारा T2 माइनस T1, सेकंड इक्वेशन, तो 69 2 आ गया, -2/2, नहीं टेम्परेचर निकालना है T2, के की वैल्यू पुट कर दे माइनस, ओके माइनस के, और ये टेम्परेचर कितना है तुम्हारा, दोनों का ऐड करके 70/2, 35 आ रहा है क्या, नहीं 70 प्लस 70, तो ये 70 आएगा -20, ठीक है, तो -2/T2, के कितना है, कितना निकाला 7/40, नहीं 4/70, 4/7। 4/70 सही है ना 4, और ये कितना आ रहा है 50, तो ये कितना आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, T2 देखो कितना आ रहा है 7, माइनस माइनस भी चला गया, 7/100 है ना, नहीं 7/10, 0.7 मिनट, मिनट में आंसर रहने दो, हाँ 0.7 मिनट दिया है, सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू कन्वर्ट इट, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है देखो, either you find the k and then put in the second equation, or you make 2 equation and divide, only thing यहाँ पर ये माइनस जो है लॉजिकली जो है dt क्या होता है, T2 फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसलिए माइनस है, तो माइनस माइनस बाद में कैंसिल हो जाए, k की वैल्यू देखो प्लस ही आती है, k इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, वहां लिखा भी एनसीईआरटी बुक में k इज द पॉजिटिव। तो सिमिलर क्वेश्चन इज इन एक्सरसाइज, देखो फर्स्ट जो है 80 to 55 मिनट्स में हो रहा है, कैलकुलेट द टाइम 60 to 30, ये भी सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, कितना 30 का है, ये भी 30 का है, बट इट विल टेक मोर टाइम, इनिशियली एक्सेस टेम्परेचर इज मोर, रेट ऑफ कूलिंग इज फास्टर, 5 मिनट्स है, इट विल कम मोर देन 5 मिनट्स, इसका मिनट में ही आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 20 यू कैन सॉल्व इट, एंड और दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये वाला भी सॉल्व करेंगे, ये 20 लिख लो, ठीक है, इसको सॉल्व करके भेजो सेम मेथड से, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्व एग्जांपल था तुम्हारा, सॉल्यूशन इज गिवन, ओनली थिंग दे हैव नॉट टेकन माइनस, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है दोनों तरफ, दोज आर गोइंग फॉर जेई, ये जेई के लिए केवल, इसमें क्या बताया था मैंने, जो के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मास एंड स्पेसिफिक हीट, ए एंड मास का रोल है, स्पेसिफिक हीट भी सेम है बिकॉज दोनों सेम मटेरियल की बनी, ए में क्या आता है πr² आता है, मास में मास का रेशियो है ना m1/m2 निकालना, इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग निकालनी, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है शायद, नहीं मास दिया है, मास थ्राइस है, तो ए को भी मास के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियस की हेल्प से, then only this can be solved. So this is the tough question of JEE Advanced.
ठीक है, those who are going for competitive examination can try. आफ्टरनून में मैं इसका आंसर बताऊंगा. Try your level best to do it. That's all this chapter. Okay, just a minute. Just a minute. Is there any class now? So this Yes, is sir. also, We have a maths class. this is the last question. Take the snapshot. This is interesting question. We are going to discuss in the afternoon. इसका snapshot लो and we'll discuss this checkpoint number 7 in afternoon. That's all from my side. सर क्या करना है अभी? रिकॉर्डिंग रोकनी है ना? सर आप रिकॉर्डिंग रोक दीजिए ओके. और आप And then लीव कर सकते हो सर इनका मैथ्स क्लासेस के बाद. होस्ट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, मैम ऑलरेडी होस्ट है. ओके. आप सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए और आप से लीव कर सकते हो. मैम मैथ स्टार्ट कर रहे थे. रिकॉर्डिंग तो मेरी इधर लैपटॉप से बंद हो जाएगी. हाँ, When ठीक है. I leave the meeting, okay, I have done.